The production function. The production function means उत्पादन फलन. उत्पादन फलन मूल रूप से उत्पत्ति के साधन और उत्पत्ति के बीच गणितीय संबंध को दर्शाता है कि उत्पत्ति के साधन में और उत्पादन में क्या संबंध है. इस संबंध की व्याख्या द प्रोडक्शन फंक्शन के हेडिंग में यानी कि उत्पादन फलन के शीर्षक में की जाती है. द प्रोडक्शन फंक्शन मीन्स it is a mathematical functional relationship between the factor of the production and production. Means what will be the changes comes in the production if the factor of the production will change. So what is the ratio in the changes of the production due to changes in the factor of production? It is called production function. So what are the factor of production? The factor of production is as below. The one is called labor. Second is called capital, and third is called entrepreneur, then organization, and labor. So basically there are four kind of factor of the production. Among them, the first is land. Land is very important factor in the production process. As we all know that whatever kind of raw material we are acquiring, that is from land only. Some raw material we acquiring from the river, some kind of raw material we acquiring from mountain, some kind of raw material we are acquiring from the forest. Whatever the raw material is there, we are finding that through the land only. No production activity can be executed without help of factor of the production. So it is important thing to keep in mind that factor of production means land, labor, capital, organization, entrepreneur. Further, in the chapter we will try to understand in the detailed manner what is labor, what is land, what is capital, what is entrepreneur, and what is organization. But here it is very important to us to know that if the input will change, the output will also change. So what changes comes in output due to the changes in the input, that mathematical and functional relationship is called production function. So this chapter is focusing only production function in the two different time context. One is short run and second is long run. Now the full description the above thing in Hindi. कि उत्पत्ति के साधनों में जो भी परिवर्तन आएगा उससे उत्पादन के साधनों में भी परिवर्तन होगा. माफ कीजिएगा, मैं गलत बोल गया. उत्पत्ति के साधनों में जो परिवर्तन होगा उससे उत्पत्ति में भी परिवर्तन होगा. भूमि, पूंजी, श्रम, साहस और संगठन ये उत्पत्ति के साधन हैं.
यदि आप भूमि की मात्रा में परिवर्तन करेंगे तो भी उत्पत्ति में परिवर्तन होगा, पूंजी की मात्रा में परिवर्तन करेंगे तो भी उत्पत्ति में परिवर्तन होगा, श्रम की मात्रा में परिवर्तन करेंगे तो भी उत्पत्ति में परिवर्तन होगा, और आप विशेष प्रकार के कौशल से युक्त संगठनात्मक संरचना में नए कार्मिकों का व्यवस्थापन करेंगे तो भी उत्पत्ति में परिवर्तन होगा। मूल सारांश यह है कि उत्पत्ति के साधनों में परिवर्तन से उत्पादन परिवर्तित होता है। तो उत्पादन के परिवर्तन होने के इस स्वभाव के अध्ययन को स्टडी ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन हम बोलते हैं। इस स्टडी को समय के दो अलग पखवाड़ों में बांटा गया है, जिसे हम अल्पकाल और दीर्घकाल के नाम से जानते हैं, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। But we have to understand what is the meaning of short run and what is the meaning of long run, because without knowing short run and without knowing long run, how could we understand the relationship between the factor of the production and production? So here it is important thing to know what is short run, या आप बोल सकते हैं अल्पकाल। अल्पकाल वो समयावधि है जिसमें उत्पादक के पास पर्याप्त समय नहीं होता है उत्पादन बढ़ाने के लिए। Means if a producer got a good order to supply the commodity to the further customers, but that producer is bound to supply that all kind of material in a very short period. He don't have sufficient time to increase the whole plant size, right? So in that situation, what he will do to increase the production? He can do only changes in the number of labor. उत्पादक उस परिस्थिति में केवल और केवल श्रम की मात्रा में परिवर्तन कर सकता है वस्तु की उत्पत्ति को बढ़ाने के लिए। But suppose that producer got a big order to supply the goods and commodity to its customer, but in the long run, not in very short period. So he has a good period, he has a good and sufficient period to change the whole plant size. So for getting the higher production, what he will do? He will try to change the whole and complete size of the plant. But it is another big question arises here. What will be the duration of the long run and short run? It's totally depend on the production activity or production process of any commodity, of any kind of goods. For example, अगर आप उदाहरण के लिए लिए गुड़ का उद्योग, जहां गुड़ बनता है, तो गुड़ की सीजन टोटल मिलाकर के 4 या 5 महीना होती है। करीब करीब अक्टूबर मंथ से गुड़ बिकना शुरू होता है और फरवरी तक गुड़ बिकता है। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, ये जो महीने हैं गुड़ का संपूर्ण उत्पादन प्रक्रिया का समय है। तो 6 महीना अपने आप में लॉन्ग रन हो गया और 1 महीना 2 महीना ये शॉर्ट रन हो गया। लेकिन जरूरी नहीं है कि 1 महीना 2 महीना शॉर्ट रन हो गया तो हर इंडस्ट्री में 1 महीना 2 महीना शॉर्ट रन होगा। किसी के लिए 2 महीना शॉर्ट रन है, किसी के लिए 2 साल शॉर्ट रन है और किसी के लिए 20 साल शॉर्ट रन है। ये डिपेंड करता है कि वो फैक्ट्री या वो उत्पादक किस वस्तु का निर्माण कर रहा है। तो हमने यहाँ स्टडी किया प्रोडक्शन फंक्शन में, ये समझने की कोशिश की कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और प्रोडक्शन के बीच के रिलेशन को प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं। मैं एक बार फिर आपको दोहरा दूं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मतलब क्या, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में सबसे पहला फैक्टर हो गया लैंड, दूसरा फैक्टर हो गया लेबर, तीसरा फैक्टर हो गया कैपिटल, चौथा फैक्टर हो गया एंटरप्रेन्योर और पांचवा फैक्टर हो गया
जिसे आप ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हैं। ये 5 अलग अलग फैक्टर हैं, इनके होने से ही प्रोडक्शन प्रोसेस को आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर ये होंगे तो प्रोडक्शन होगा, ये नहीं होंगे तो प्रोडक्शन कहां से होगा। आगे चलते हैं। इकोनॉमिक्स में प्रोडक्शन के 3 अलग अलग सिनोनिम्स यूज किए जाते हैं। पहला है प्रोडक्शन और दूसरा है रिटर्न्स और तीसरा है आउटपुट। Please don't be confused between the production, returns and output. All three names give the same conclusion and same meaning. ठीक है, तो अब थोड़ा सा हम और समराइज्ड कर लें कि क्या होता है प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है ये थोड़ा सा हम समराइज कर लें। Production function is mathematical relationship between factor of the production and production. If the factor of the production will change, definitely the production will change. So it is a matter of study that what kind of changes comes in the production if the factor of production will change. It is called study of the production function. ठीक है, अब आपके लिए अगला जो क्वेश्चन है या अगली जो विचारधारा है वो ये है कि ये तो आप समझ गए कि साहब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में चेंज होगा तो आउटपुट में भी चेंज होगा या प्रोडक्शन में भी चेंज होगा, तो उसे हम बोलते हैं प्रोडक्शन फंक्शन। बट इसे ऐसा भी बोला जा सकता है, इट इज अ मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। इफ यू विल चेंज द इनपुट, द आउटपुट विल ऑटोमेटिकली चेंज। सो इट इज द क्वेश्चन टू स्टडी इन द चेंजेस ऑफ आउटपुट ड्यू टू द चेंजेस इन द इनपुट। इट इज कॉल्ड प्रोडक्शन फंक्शन। तो बच्चों आपको ये समझ में आ गया, इनपुट के और आउटपुट के बीच के रिश्ते को हम क्या बोलते हैं, इनपुट के और आउटपुट के बीच के रिश्ते को हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन फंक्शन बोलते हैं। अब अगर आप इसे हिंदी में भी थोड़ा सा क्लियरली समझना चाहते हैं तो वो उसका डिस्क्रिप्शन कुछ इस तरह से हो जाएगा। आदाओं एवं प्रदाओं के मध्य फलनात्मक संबंध को ही हम इनपुट और आउटपुट के बीच फलनात्मक संबंध को ही हम उत्पादन फलन कहते हैं। अन्य भाषा में उत्पत्ति के साधनों में परिवर्तन होने से उत्पत्ति में परिवर्तन होना निश्चित है। तो यह विषय अध्ययन का हो जाता है कि उत्पत्ति के साधनों में कितना परिवर्तन होने से उत्पादन में कितना परिवर्तन होगा। यह प्रत्येक उत्पादक प्रबंधक के लिए जानना जरूरी है। Now it is the question to understand the production function in the short run and in the long run. In our next class, we will try to understand how to do study of production function in short run and how to do study of production function in long run. I hope you understand very well. We will continue our class. Thank you.